Welcome to Sushmita's science class. Here, science will be made very interesting and easy. Children, now we are going to study about respiratory system. All living things respire. So all living beings respire to get energy. We cannot live without breathing. The process of inhaling and exhaling air is called breathing. During breathing, oxygen is taken in and carbon dioxide, nitrogen, that is the unused part of the air, and water vapor are thrown out. Breathing is also called external respiration. Breathing helps in movement of gases from outside to the body and from the body to outside. We breathe fast when we are exercising, running, jumping. All living things need energy for their activities. These energy come from the food. The food taken in by the living organism combines with oxygen inside its body to produce energy. The process of producing energy from the food due to its reaction with oxygen is called respiration. So here is our respiratory system which takes in air through the nose. Here through the nose, and it passes from the pharynx to the larynx and then to the windpipe, which is also known as trachea. This larynx is the voice box. The trachea or the windpipe is the airway that leads from the larynx to the bronchi. Now, this is the bronchus. The trachea comes and bifurcates and enters the two lungs, the right lung and the left lung. Right lung has 3 lobes, but the left lung has only 2 lobes. This trachea serves as passage for air. It moistens and warms the air while it passes into the lungs and protects the respiratory surface from accumulation of foreign particles. Trachea is lined with moist mucous membrane layer composed of cells containing small hair-like projections called cilia. यहाँ से एयर अंदर आता है. ये वॉइस बॉक्स है. इसको विंड पाइप कहते हैं या ट्रैकिया कहते हैं. ट्रैकिया एयर को लैरिंग्स से अंदर लंग्स के अंदर लेकर जाते हैं. ट्रैकिया यहाँ बाइफोर्केट हो जाता है. इस ट्रैकिया के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि डस्ट डर्ट सब चीज़ को अंदर से अंदर ही रोक लेता है और एयर को मॉइस्चन कर देता है, गीला कर देता है. द ट्रैकिया इज लाइंड विद moist mucous membrane layer composed of cells containing small hair-like projections called cilia. Cilia is a defense system for the body by keeping the airways clear from mucus, dust, dirt and foreign matter. The air then passes into the bronchus. Here there are capillaries. See? The smallest of these tube is called bronchiole. These control the exchange of gases with the alveoli. These are the small alveoli. These are the tiny air sacs in the lungs. Each lobe has same function, bringing oxygen into the bloodstream and removing carbon dioxide. This has 3 lobes, this has 2 lobes. These have 2 lobes because a part of the cavity
on the left side is occupied by the heart. Now these alveoles have small capillaries of the pulmonary veins and pulmonary arteries to exchange gas from the alveoli. These are balloon-like structures in the lungs. ये बैलून के तरह छोटे 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 बहुत सारे बैलून्स के तरह स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर देखो कितने सारे ये जो रेड दिख रहे हैं ये है आर्टरीज और ये ब्लू वाले वेन्स हैं। ये हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। द पल्मोनरी वेन्स जब वो छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक हो जाते हैं उसे वेन्यूल कहा जाता है। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी आर्टरीज आर्टेरियोल्स कहते हैं कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे कि वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से लेकर वापस जाते हैं हार्ट के पास, और जो आर्टरीज होते हैं वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होता है उसको लेकर पूरे बॉडी में जाते हैं। पर यही एक जगह है लंग्स। हार्ट से जो आर्टरी ब्लड लेकर लंग्स में आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है ज़्यादा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है। सिर्फ यही वाला आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेकर आता है, क्योंकि लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और सिर्फ यही यहाँ जो वेन है जो कि लंग्स से वापस जाता है हार्ट तक, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है। बाकी जो ऑर्गन्स हैं वहाँ से जो वेन्स वापस आते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेकर आते हैं, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो वैसा ब्लड वेन्स कैरी करते हैं। सिर्फ जो वेन लंग्स से हार्ट तक जाता है सिर्फ वो ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये लंग्स के ऊपर एक कवरिंग है जिसमें फ्लूइड है, इसको प्लूरा कहते हैं। प्लूरा अलाउज ऑप्टिमल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। द फ्लूइड एक्ट्स एज लुब्रिकेंट टू अलाउ ग्लाइडिंग ओवर ईच अदर फ्रिक्शन फ्री। ये लंग्स एक्सपैंड होता है और छोटा हो जाता है, फिर से कंट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है और कंट्रैक्ट होता है। तो ये लोब्स एक के ऊपर एक सेट हो जाते हैं और यहाँ हार्ट है और भी चीज़ें हैं उसके ऊपर आराम से मूव कर सके, इसीलिए ये लोब्स बने हुए हैं। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर लंग्स, विंड पाइप और ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, bronchus and bronchi plural. So when we breathe in air, it enters through the nose and is cleaned by the hair in the nostrils. जब हम इनहेल करते हैं नोज़ से एयर अंदर जाता है और नॉस्ट्रिल्स में जो म्यूकस है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो एयर को साफ़ कर देता है, डस्ट डर्ट जो है वहाँ रोक लेता है। उसके बाद एयर ट्रैकिया के अंदर से आता है, तो ट्रैकिया के अंदर भी म्यूकस है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे सीलिया कहते हैं, ये भी डस्ट डर्ट को लंग्स के अंदर जाने से रोक लेता है, क्योंकि यहाँ इतने बारीक बारीक आर्टरीज और वेन्स है और एल्वियोली है, इसके अंदर अगर डस्ट और डर्ट जम जाए तो हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। द एयर देन मूव्स डाउन थ्रू द विंड पाइप और द ट्रैकिया एंड मूव्स टुवर्ड्स द लंग्स। द विंड पाइप ब्रांचेस ऑफ इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई और ब्रोंकियल ट्यूब्स।
यहाँ से बाइफोकेट दोनों लंग्स में चले जाते हैं और ये बिल्कुल बारीक 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 ट्यूब्स में बढ़ जाते हैं. These tubes end with balloon-like air sacs. The lungs are the main organs of the respiratory system. In the lungs, oxygen is absorbed from the inhaled air and carbon dioxide is removed from the lungs as exhaled air. The air that we breathe in has more of oxygen. The air that we breathe out has more of carbon dioxide. ये जो बैलून लाइक एयर सैक्स हैं, इनके ऊपर बहुत सारे आर्टरीज एंड वेन्स हैं जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, और ये है डायफ्राम. ये लंग्स को एक्सपैंड होने में हेल्प करता है. ये जैसे लंग्स एक्सपैंड होता है, ये डायफ्राम नीचे की ओर मूव हो जाता है ताकि ये जगह पर ज़्यादा स्पेस आ जाए इस लंग्स को एक्सपैंड करने में. फिर जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायफ्राम फिर से अपनी जगह पर इस तरह से आ जाता है. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम. If you found the video useful, like, share and subscribe.